and ensuring the continuity of our cultural and architectural heritage. I again thank Honorable. Thank you so much, Mr. Abhijit, for sharing your valuable insights on the evolution of Goan landscape. Honorable Member of GIFT, Charudatta, we have with us Shri Rohit Kalakji, industry leaders, members of the media, and all our Prani se Paramatma ki or, Dharti se. Sir, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत. By bringing together the architects, planner, conservationists, engineers, policymakers, and the students on one platform, GSIDC has initiated the dialogue that is both timely and necessary. I welcome the experts, Sri Dean D. Cruz, Gerald Kunna, Charudatta Panigri, and all other dignitaries from the state of the Goa and rest of the dignitaries. You are the people who have proved the architect is not merely about the constructing the buildings, it is about the building culture, the communities, and civilization. Whenever the history of the civilizations is written, it is not only remembered merely through the chronicles of its kings or battles, it is fought. It is enduring the identity by reflecting in the cities it's built, its temple, its rivers, and its homes it nurtured, and the public spaces where the community flourished. The building speaks long after the generations have passed. They tells us how our ancestors understood the nature and how they organized the society and how balanced unity with the beauty. That is why Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is consistently remembered the nation Vikas Bhi or Virasat Bhi. The development alongside the heritage. It is not just a slogan, it is India's developmental philosophy. Earlier, developmental often meant replacing the old with new. Today, under leadership of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization. This is precisely the philosophy that Goa believes in it. Goa as a living laboratory for the sustainable architecture. Today, the world is discussing the climate change resilience, architecture, passive cooling, embodied carbon, the circular economy, and sustainable construction. The people of Goa is an imbibed for its centuries. Our laterite stone walls, the lime plasters, it is a sloping mangrove tiles roof, shed the vandalist, and central courtyards are the natural ventilates home were not merely the architectural choice. They were scientific response to our geography. They respond to heavily monsoon rainfall. They reduce the indoor temperature. They conserve the energy. They maximize the natural light. They respect the locally available materials. Goa has been practicing the green architects and which the world is talking now. This is why the Goa is not merely preserving the history, Goa is preserving a knowledge. India's greatest strength lies in the wisdom accumulated over the thousands of years. Today, the world is searching for sustainability. Our sages showed us the path of living in harmony with the nature the thousands of years ago. The philosophy of the Panchamahabhuta, Prithvi, Aap, Tej, Jal, Vayu and Akash, shaped the Indian sentiments the long before the environmental science became the global disciplines. Prime Minister Narendra Modi ji has also given the word which is the vision of life, the lifestyle for environment. It is an invitation to rediscover the sustainability ways of life rooted in Indian civilization wisdom. Goa's architecture represents exactly that philosophy.
The responsibility before us is not merely to conserve the old buildings. Our aim is to connect past to the future. The government of Goa has therefore adopted the comprehensive approach towards the heritage conservation. Through the Goan Heritage Policy, we are strengthening the documentation, the GIS-based heritage mapping, digital inventories, and scientific conservations. We are restoring the historic fort. It is about the strengthening the local identity, supporting the traditional craftsmen, creating the livelihood, and ensuring the future generation inherits the living heritage rather than forgotten the monuments. Energy efficiency and climate responsive architecture is not an open, it's necessity. The building we construct today, it must be consume less energy, conserve more water, maximize the natural light and ventilations, and minimize their environmental footprint. Harvesting energy efficient system, renewable energy solution, universal acceptability and integrated building management system, while simultaneously drawing inspiration from Goa's own architectural tradition. I urge the experts, architect and policymaker to share their wisdom with us. Together, we can establish the meaningful benchmark for the green public infrastructure that are not merely internationally relevant, but also rooted in Goa's unique climate and cultural context. और गोवा सरकार की सोच वही है कि भारत की इस विकास यात्रा में हम सम्मिलित हों. Let us ensure that future generation inherit not only the strong infrastructure but also the stronger identity. Let us build not only Honorable Union Minister, GSIDC and our distinguished speakers and for the every delegates present here. आइए हम सब मिलकर ऐसा गोवा बनाए जहां विकास हमारी पहचान और सशक्त बनाए, हमारी विरासत आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने. यही विकसित भारत 2047 का एक मार्ग है जहां आधुनिकता और परंपरा का साथ साथ आगे बढ़ सकती है. आइए हम सब मिलकर विकास भी और विरासत भी इसी संकल्प के साथ आंदोलन बनाए रहे. मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के साथ साथ विकसित गोवा भी इसी सेक्टर में बनेगा. इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय भारत. जब मैं आप सबके बीच में इस कॉन्फ्रेंस में, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, तब अपनी ज्ञान संपदा के संरक्षण, मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिजिटाइजेशन और उनको कंप्यूटर तकनीकी का उपयोग करते हुए जन सुलभ भाषा में किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है, हमारी इस धरोहर को हम संरक्षित करते हुए आने वाले सदियों तक वो सुरक्षित रहें, उसके लिए उनका कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है, इस पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक नेशनल मिशन ज्ञान भारतम के नाम से चल रहा है, उसकी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का हिस्सेदार बन के आप सब लोगों के बीच में पहुंचा हूं. और मैं जब यहाँ खड़े होकर के हमारी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल विजडम की बात करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गरिमा के साथ में गोवा के आर्किटेक्चरल प्लानिंग और हमारी एंसेस्ट्रल्स विजडम की बात की, मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे एक ही दिन भारत के विरासत के स्थूल रूप, द फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियन लिगेसी, इट्स आर्किटेक्चर और उसकी आत्मा जो भारत की ज्ञान परंपरा, उन दोनों विषयों पर एक साथ एक ही दिन लगातार बात करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है. मैं मंच पर उपस्थित गोवा के सम्मानित लोकप्रिय मुख्यमंत्री
और मेरे मित्र आदरणीय डॉक्टर प्रबोध सावंत जी का उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। मंच पर उपस्थित श्री रोहित कदम जी, आदरणीय चारुदत्त पाणिग्रही जी और इस सभागार में उपस्थित देश के विभिन्न कोनों से आए हुए सभी प्रतिष्ठित वास्तुविद, अर्बन प्लानर्स, इस सभागार में उपस्थित आए हुए विरासत का संरक्षण करने के लिए जुटे ऐसे सभी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, यंग आर्किटेक्ट्स, विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, मित्रों, हम सब लोग यहाँ केवल भवनों की बात या आने वाले समय में भवन कैसे बनेंगे या भारत की स्थापत्य कला किस तरह से काम करती थी, कितनी समृद्ध थी, मात्र इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं हुए। अभी तो हम सब लोग आज यहाँ एक ऐसी निर्माण प्रौद्योगिकी पर विचार करने के लिए एकत्रित आए। हम सब लोग यहाँ एक ऐसे मूल प्रश्न पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए जो किसी भी सभ्यता के भविष्य का निर्धारण करता है, निर्माण करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। मित्रों, हम सबके मन में निश्चित रूप से जिस तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक प्रश्न अवश्य आता होगा। कोई एक वृक्ष, कोई एक पेड़ यदि अपनी जड़ों से कट जाए तो क्या उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रह सकता है? और यदि इसका उत्तर, जो मैं मानता हूं कि हम सब लोग इसको सहज स्वीकार करेंगे कि वो नहीं होगा, निगेटिव होगा, तो मित्रों, हम सब के सामने आज इस कार्यशाला में प्रश्न ये होता है कि आज भारत जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सभ्यता की आत्मा और इसके स्थूल रूप, इन दोनों को साथ लेकर के किस तरह से आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मंत्र, जिसकी चर्चा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, कि विरासत का संरक्षण और विकास। और जब विरासत के संरक्षण की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य केवल हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का कंजर्वेशन मात्र नहीं है, अपितु जो बौद्धिक संपदा, जो ज्ञान, जो जीवन पद्धति और प्रकृति के प्रति हमारा उत्तरदायित्व का भाव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेचुरल एलिमेंट्स और द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, उनके साथ सहजता का हमारा संबंध, इन सब को संरक्षित करते हुए, सहेजते हुए, इनके आधार पर हम अपना विकास किस तरह से करें, इस दृष्टिकोण से विचार करने के लिए हम सब लोग यहां एकत्रित आए। मित्रों, भारतीय मनीषा ने हजारों हजारों साल पहले इस बात का उद्घोष किया था, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया। ये धरती जो है, ये हम सब की मां है और हम सब उसके पुत्र के समान हैं। और मैं ये मानता हूं कि इस एक वाक्य में, इस एक पंक्ति के इस श्लोक, भारत के स्थापत्य का दर्शन समग्रता और संपूर्णता के साथ में समाहित है। यदि पृथ्वी माता है तो भवन केवल भूमि पर खड़ी हुई संरचना मात्र नहीं हो सकता, अपितु ये प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा का विस्तार है, ये प्रकटीकरण। भारतीय मनीषा ने जल को देव के रूप में स्वीकार किया। यदि जल को देव के रूप में सम्मान किया, तब प्रत्येक आवास से लेकर के प्रत्येक नगर तक जल के सम्मान का प्रकटीकरण किस तरह से हो और जल का सम्मान किस तरह से सुरक्षित रहे, यह हमारे लिए चिंतन का विषय है। यदि वायु को हमने प्राण की संज्ञा दी, और भारतीय मनीषा की सौंदर्य यह था कि जो कुछ भी देता है उसको देव के स्वरूप में माना है।
जो कुछ भी देता है उसको देवता के स्वरूप में मान करके उसके संरक्षण, उसके साथ सहज संबंध हो, उसके प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व का भाव बना रहे, इसके लिए उसको धर्म के ऋजु से डोरी से बांधने का विधान किया गया। बिल्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हैं। मुझे आप सबसे साथ में साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि अभी 4 ही दिन पहले वाराणसी के सारनाथ के स्तूप को विश्व की धरोहर के रूप में नामित किया गया, चिन्हित किया गया, और भारत में इस तरह की 45 धरोहरें अब तक नामित चिन्हित की जा चुकी। निश्चित रूप से पूरे भारत में लगभग सर्वदूर इस तरह की हमारी ऐतिहासिक विरासत, संपदा, धरोहर जो है वो बिखरी हुई है, और सभी राज्यों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस दिशा में इसके संरक्षण के लिए, उनको स्थायी बनाए रखने के लिए काम हो रहा है। लेकिन मैं इतना जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ क्योंकि गोवा देश और विदेश से आने और जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अत्यंत आकर्षण का केंद्र है और बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ लाखों लोग देश भर से और विदेश से गोवा को भ्रमण करने के लिए, गोवा के बीचेस पर का लुत्फ लेने के लिए, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, वहाँ के बिल्ट हेरिटेज को देखने के लिए, वहाँ के आर्किटेक्चर को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ अगर हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को ठीक से संजो करके, सहेज करके रखते हैं तो हम देश दुनिया से आने वाले उन सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि गोवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हेरिटेज, बिल्ट हेरिटेज और उसके साथ साथ में हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि हम केवल टेंजिबल असेट की बात करें तब संपूर्ण नहीं होगा, हम इंटेंजिबल हेरिटेज के भी संरक्षण के लिए जिस तरह से काम कर सकते हैं। गोवा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के भाव के अनुरूप इस दिशा में काम कर रहा है, मैं ये मानता हूँ कि गोवा रोल मॉडल भी बन सकता है और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि लाखों लोग जो वहाँ जाते हैं उनको इंस्पायर करके ऐसे विषयों पर जुड़ने और आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू। इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रियली गोवन आर्किटेक्चर जो है वो नाउ नॉट रिसेंटली बट सिंस फ्रॉम द 4th सेंचुरी जो गोवन आर्किटेक्चर जो बिल्डअप हो रहा है, और वही प्रिजर्वेशन करने का काम रिसेंटली ऑल द आर्किटेक्चर्स वहाँ के जो अभी कर रहे हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही जो हम बना रहे हैं विजन गोवन क्लाइमेट के हिसाब से जो बना रहे हैं वो नेशनल लेवल पे दिखाए, और यही हमारी संकल्पना थी। और इसी के साथ साथ जब हम क्लाइमेट रेजिलेंस की बात करते हैं, कार्बन इमिशन की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस सभी क्षेत्र में नेशनल लेवल पे जो काम चल रहा है वो हमारे साथ आर्किटेक्चर को भी पता चले और गोवन आर्किटेक्चर के बारे में पूरे देश भर में पता चले। इसी के लिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। वेरी गुड रिस्पॉन्स, पूरे दिन भर में डिफरेंट सेशन गोवन आर्किटेक्चर यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अभी अभिजीत साधु यंग आर्किटेक्ट जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो उन्होंने बात कही है, इसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और बाकी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमेशा कहते हैं विरासत भी और विकास भी, वही विरासत को आगे लेते हुए गोवा का इस 12 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एडवांस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सके और विरासत का प्रिजर्वेशन भी। ये कहते वक्त मैं बस एक बात ज़रूर कहूँगा, इट इज़ एन अगवा जेल म्यूजियम ऑन द सेम लाइन ऑफ द अंडमान जेल जो हमने प्रिजर्व किया है, वो भी यानी देखने लायक है। ज़्यादातर लोग मैक्सिमम सन्स एंड सी को प्रीफर करते हैं। द स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो हलसा टेम्पल जो वेरना में दिखा है, विच इज़ ऑल्सो द सेम स्टोरी ऑफ द राम मंदिर, विच इज़ 400 साल जो पहले मंदिर जो पूरा जो तुड़वाया था वो फिर से एक बार महासा नारायण ने टेम्पल बनाया। और अभी कोटी तीर्थ की जो कॉरिडोर की बात की है, ऑन द सेम वही यानी जो 400 साल पुराना जो मंदिर तोड़ा था वही वापस से हम मंदिर बनवा रहे हैं। यही बात लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि गोवा इज एन सन सैंड और सी के साथ स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। थैंक यू।